Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture 11 of Maths 120. In the previous lecture, we were discussing linear independence of vectors. So today we shall discuss again some of the examples of linear independence. And then we shall discuss basis of a vector space, dimension, row space, and column spaces. Row and column spaces are basically subspaces. And null space as well, rank and nullity of a matrix. So these things we are going to discuss today. Let's start with the definition of linear independence. We have already discussed linear independence in the previous lecture, that if we have any set of vectors, finite set of vectors v1, v2, so on, vk, this set is a subset of any vector space, then this set is said to be linear independent if we write this expression c1 v1 plus c2 v2 plus so on ck vk is equal to 0. And this expression basically gives us all, if this expression gives us all the coefficients, the constants 0, it means that the vectors v1, v2, so on, vk, they are linearly independent. So we discussed in the previous lecture, why is this so? Why is this expression considered to check whether the given vectors are linearly independent or not? I explained you this thing in the previous lecture. You can see in the previous lecture. If you have any problem, you can discuss with me. If the vectors are not linearly independent, then they are said to be linearly dependent. Okay. So इसमें आपका कोई question है तो you can ask me. Otherwise, we are going to discuss a couple of examples related to the matrices and polynomials, and then we shall move forward. In this example, we have to verify whether the given vectors are linearly independent or not. So these are the first example. A part is 2 by 2 matrices, and in the B part is we have 2 by 3 matrices. For example, if we look at the first part, A part, how do we prove here whether the given vectors are linearly independent or not? It's same procedure. If we call this a vector v, v1, and this is v2, and this is v3. We consider again, or we can say then, say these matrices, a matrix A1, a matrix A2, a matrix A3. Then we can consider the same expression C1 A1 plus C2 A2 plus C3 A3, and we put it equal to 0 matrix. Now the right hand side should be a 0 matrix, which should be of the same order 2 cross 2. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे देखें C1, what is your A1? 1 0 1 2 plus C2 1 2 2 1 and plus C3 into 0 1 2 1 equal to 0 0 0 0. So this is our expression which we write in order to verify that the given set of vectors is linearly independent. Now we solve the left hand side, and what do we obtain here? If we solve it, what do we get here? C1 plus C2 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C1 C2 C3 अंदर, और फिर ऐड भी कर रहा हूँ इन मैट्रिसेस को, तो ये आ जाएगा. सेकंड में आपके पास 2C2 और प्लस C3, ये सेकंड एंट्री आ जाएगी. ठीक है. थर्ड एंट्री क्या होगी? C1 प्लस 2C2 एंड प्लस 2C3, और आखिरी एंट्री क्या होगी? 2C1 प्लस C2 प्लस C3. ठीक है. इक्वल टू द सेम थिंग 0 0 0 0. ठीक है. अब अगर आप देखें तो we can
we can write 4 equations, okay, from here. We can write 4 equations by equating left hand and right hand side. They are C1 plus C2 equal to 0. And the second equation is 2C2 plus C3 equal to 0. The third equation is C1 plus 2C2 plus 2C3 equal to 0. And the fourth equation is C1 plus C2 plus C3 equal to 0. So this is what we obtain. हमारे पास इक्वेशंस आ गई. अब इन इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम होमोजीनियस लीनियर सिस्टम लिखेंगे. होमोजीनियस लीनियर सिस्टम क्यों लिखेंगे? इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स C1, C2, C3, C4, C3. ठीक है, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं. ठीक है, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम तो है, सॉरी, ये augmented matrix लिखेंगे. ठीक है, in order to find the values of constants, which is C1 1 0 0, and then 0 2 1 0, and 1 2 2 0, and 2 1 1 0. So this is your augmented matrix. After solving this, we should get, I hope you can solve it, because it's a simple augmented matrix and you know how to solve it. You have to reduce it into echelon or reduce echelon form, and then you need to find C1, C2, C3. You would definitely get the values of C2, C3, all these values 0. अगर आपके पास ये सारी values 0 आ जाती हैं, then we say that V1, V2, V3 or A1, A2, A3, they are linearly independent matrices in the space M22. I hope you get it. If you have any question, you can ask. If not, we are going to move forward. Now, in this example, we need to verify whether the set S is linearly independent or dependent. We need to check it. The set S contains 2 polynomials of degree 2. So how do we prove? We call them vectors V1 or V2. We can say this is V1 and this is your V2. But this is a set of polynomials, so we call them polynomials. Means P1 and P2. Okay? So in order to verify that these polynomials are linearly independent or not, sorry, what we consider a constant A1 plus P1 and a constant maybe B P2 is equal to 0. हम इसको 0 put करेंगे and then we solve for A B. A B की values find करेंगे. अगर A और B की values 0 आ जाती हैं, तो we say that these 2 polynomials or the set S is linearly independent. This is what we have done here. A P1 plus B P2. यहाँ पे अब इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है. क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 है, आप यहाँ पे लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स इकट्ठे करें. ठीक है, अब हमने इसको पहले इसको सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया, फिर x का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया और फिर कांस्टेंट कलेक्ट कर लिया. ठीक है, अब हमें पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल है a constant time x square, a constant time x and plus a constant. ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0x square plus 0x plus 0. ठीक है, अब हमें पता है कि दो polynomials of same degree they are equal if and only if their coefficients are equal. ठीक है, तो ये कोफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा? ये 0 के इक्वल आ जाएगा. ये दूसरा भी कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल, और तीसरा कोफिशिएंट भी 0 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, यहां से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी. 3 इक्वेशंस, पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई. ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन में a की वैल्यू 0 है, इसको यहाँ पुट करें तो b की वैल्यू भी 0 आ जाती है. ठीक है, so what do we get? a equal to 0 and b is equal to 0. What do we conclude here?
we conclude that S is linearly independent. I hope you understand it. We set this expression depending on the elements of the set. अगर set S के elements जो हैं वो matrices हैं तो हम इसको by keeping in our mind matrices हम equal to some matrix zero matrix put करेंगे, ठीक है, और left hand side पे भी constant time matrices आएगा. अगर polynomials हैं तो constant time polynomials आएंगे, equal to zero put करेंगे, और polynomials में हम इस तरह equate करते हैं coefficients को, like powers को हम collect करके इसको equal to zero put करते हैं, और इस वाले को हम extend करके तो coefficients को compare करके हम we can get the equations. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. Next is another example. It's example of polynomials again. Now we have three polynomials. P1 is 1 minus x, and P2 and P3 are given, and we need to check whether they are linearly independent or not. These polynomials belongs to P2. And what is P2? P2 is a set of all polynomials of degree less than or equal to 2. So हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये linearly independent है या नहीं. I hope you can do it. If you have any question, you can ask me. If you don't have any question, we are going to move forward. Finite dimensional vector space. देखिए हमने पहले लीनियर इंडिपेंडेंस पढ़ा, फिर स्पैन पढ़ा, ठीक है. व्हाट इज द स्पैन ऑफ अ सेट, स्पैन ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. एनी वेक्टर स्पेस V is said to be finite dimensional अगर if a finite set spans that vector space. Finite set spans that vector space. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर R2 है, ठीक है, तो R2 को कौन सा सेट स्पेन कर रहा है, 1 0 एंड 0 1. तो ये एक सेट है जो इसको स्पेन कर रहा है, जो इसको जनरेट कर रहा है, ठीक है. अब ये सेट जो है इसमें E1 और E2 दो वेक्टर्स हैं, ठीक है. इसको हम I वेक्टर और इसको J वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है. तो इस स्पेस को R स्क्वायर को, इट इज अ वेक्टर स्पेस, इसको एक फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स 1 0 0 1 ये स्पेन कर रहा है. फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है तो ये R स्क्वायर जो है ये एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट स्पेनिंग सेट. और आगे चल के हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे. जो सेट इसको स्पेन कर रहा है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली उसकी डायमेंशन होगी, लेकिन देयर इज वन एडिशनल कंडीशन ऑन दैट, वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी डिसाइड. स्टिल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कोई भी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल कब होगी. अगर एक सेट फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स अगर किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है तो उसको हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं. जैसे कि यहाँ R2 जो है, या अगर हम जनरलाइज करें तो R3, ठीक है. R3 को कौन से वेक्टर स्पेन करते हैं, R3 जो है वो स्पेन करते हैं 1 0 0 एंड 0 1 0 और 0 0 1. सो ये तीन वेक्टर्स जो हैं R क्यूब को जनरेट कर रहे हैं, स्पेन कर रहे हैं, तो R क्यूब इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. Similarly, we can say that Rn is a finite dimensional vector space because E1, E2, so on, En, this set generate Rn, and this set is finite. So Rn is a finite dimensional vector space. अगर कोई ऐसा सेट ना हो, फाइनाइट सेट, जो कि किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट ना कर रहा हो, तो उस वेक्टर स्पेस V को फिर हम इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है. So if you have any question, you can ask me. सर ये एक दफा फिर से रिपीट कर सकते हैं, सही तरह समझ नहीं है सर. फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर कोई फाइनाइट सेट किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, स्पेन कर रहा है, जैसे कि R2 की मैंने एग्जांपल दी, R2 को
कौन सा सेट स्पेन करता है? R2 को स्पेन करता है कौन सा सेट? अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स देखें तो इट इज 1 0 एंड 0 1। ये पूरे R2 को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो एक फाइनाइट सेट अगर R2 को जनरेट कर रहा है तो R2 क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेट नहीं है जो R2 को जनरेट कर रहा है, फाइनाइट सेट नहीं है, तो फिर R2 जो है उसको हम इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे R2 को 1 0 0 1 दो वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। R2 इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, any confusion, please go ahead, you can ask your question. सर आप एक इनफाइनाइट की एग्जांपल दे सकते हैं ताकि डिस्टिंक्शन में थोड़ी आसानी हो जाए? हाँ दे सकता हूँ, लेकिन उसमें देखें, अगर सेट ऑफ फंक्शंस लें, अगर हम एक f सेट डिफाइन कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसके लिए यू नीड टू नो द कैलकुलस। ये एक सेट है f फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इट इज बेसिकली सेट ऑफ all real valued functions, ठीक है, defined on the set, defined on माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब मतलब इस सेट में कौन कौन से फंक्शंस होंगे? इनफिनिट मेनी फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल f of x is equal to x आ गया, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे सेट जो हैं ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे ये सारे फंक्शंस डिफाइन होंगे। इसी तरह आप कह सकते हैं साइन x है, ठीक है, ये भी r पे डिफाइन होता है, cos x है, एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, ये तमाम के तमाम फंक्शंस हैं। तो ये कितने फंक्शंस होंगे इस सेट में? Who was talking to me? सर मैं बात कर रहा था। क्या नाम है बेटा? इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्या नाम है? अरीब इरफान। अरीब इरफान। इसमें कितने फंक्शंस होंगे? वी कैनॉट काउंट दैट। ये इनफिनिट सेट है, ठीक है। इनफिनिट वेक्टर स्पेस में इनफिनिट एलिमेंट्स होंगे। अब ये जो स्पेस है वेक्टर स्पेस होती है ये, ठीक है, लेकिन इस वेक्टर स्पेस का कोई बेसिस सेट नहीं है। कोई फाइनाइट सेट ऑफ फंक्शंस जो है वो इस वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए ये जो एक वेक्टर स्पेस है ये इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मसलन आप कह सकते हैं सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने पहले जो वेक्टर स्पेसेस डिफाइन की थी वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, ये डिफाइन की थी ना। अगर मैं जनरली एक स्पेस डिफाइन करूं p of x which is set of all polynomials, ठीक है, set of all polynomials, तो ये जो स्पेस होगी, ये जो स्पेस है, अब पॉलिनोमियल्स की डिग्री मैंने डिफाइन नहीं की, डिग्री कुड बी एनी नंबर, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस होती है और इसका जो जनरेटिंग सेट है वो फाइनाइट नहीं होता, इसको कोई भी फाइनाइट सेट जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाती है। लेकिन अगर मैं यूं डिफाइन कर दूं p n of x, ठीक है, which is what? set of all polynomials of degree less than or equal to n, ठीक है। अब ये एक वेक्टर स्पेस है जो कि सब स्पेस होगी डेफिनेटली इसकी, और ये जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है ये सब स्पेस होगी f माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्पेस है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसकी सब स्पेस है p of x ये वाली, क्योंकि सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, तो ये इसकी सब स्पेस है। अब Pn of x जो है वो इसकी सब स्पेस है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री n या उससे लेस की पॉलिनोमियल्स है,
ये तीनों वेक्टर स्पेस हैं, लेकिन P की सब स्पेस है, P जो है वो F की सब स्पेस है। अब ऊपर वाली दो जो हैं वो इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं, लेकिन Pn ऑफ x जो है ये एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, क्योंकि एक फाइनाइट सेट इसको जनरेट करता है। Pn ऑफ x को कौन सा फाइनाइट सेट जनरेट करेगा? ये सेट होगा लेट मी ये सेट होगा, इसको स्पेन करेगा, इसका स्पेनिंग सेट जो है वो क्या है? 1x x square so on xn। ये एक सेट होगा जो इसको Pn ऑफ x को जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट है, तो Pn of x is a finite dimensional vector space. I hope you get it. If you have any further question, you can ask me. Areeb was talking to me. Yes sir, thank you. समझ आ गई। You got it? Okay, let's move forward then. Next is basis of a vector space. अभी हमने पीछे डिफाइन किया यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होती है, और अब हम नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगर कोई फाइनाइट सेट किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। अगर वो सेट S जो उस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, अगर वो सेट दिस वन सॉरी ये वाला सेट जो है, अगर ये सेट V को स्पैन करता है, और दूसरी कंडीशन अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, then we say that this set is a basis for a vector space। ठीक है, स्पैन तो डेफिनेटली करेगा। हमने कहा कि अगर कोई फाइनाइट सेट अगर किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है तो उस वेक्टर स्पेस को हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। इन एडिशन अगर वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, मींस उसके एलिमेंट्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इस सेट को फिर हम क्या कहेंगे? बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये सेट S है, ठीक है, E1 E2 so on En, ये सेट जनरेट करता है Rn को, और ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो ये सेट जो होगा ये बेसिकली क्या होगा? इट इज द बेसिस ऑफ Rn होगा। ठीक है, अगर हम R स्क्वायर को एक अगर हम ये वाली लें सेट S इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये हमने देखा कि ये R स्क्वायर को जनरेट कर रहा है, और इसमें जो दो वेक्टर्स हैं E1 E2 या Ij, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। अगर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं तो ये R स्क्वायर की बेसिस कहलाएगा। ठीक है, तो ये R स्क्वायर की बेसिस होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो बेसिस हैं ये वाली 1 0 0 1 जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं Rn के या R2 या R3, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का जो सेट है वो बेसिस सेट होता है, और इसको हम स्टैंडर्ड बेसिस भी कहते हैं Rn। तो दिस सेट इज बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2। ठीक है, and this set is again standard basis of Rn। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड बेसिस है तो क्वेश्चन ये है कि क्या स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा भी R स्क्वायर का कोई बेसिस सेट हो सकता है? द आंसर इज यस। कोई से दो वेक्टर्स जो हैं अगर वो R स्क्वायर को अदर देन दीज वेक्टर्स 1 0 0 1 अगर वो R स्क्वायर को स्पैन करते हैं और वो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, तो वो बेसिस हो सकती हैं R स्क्वायर की, लेकिन वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होंगी। R स्क्वायर की इनफिनिट मैनी बेसिस सेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। 1 0 0 1 तो एक सेट है जो कि R स्क्वायर को जनरेट कर सकता है, कर रहा है यहाँ पे, और ये बेसिस है। इसके अलावा भी बेसिस हो सकती हैं, हम आगे चल के एग्जांपल्स में ये देखेंगे। ठीक है, so I hope you get it. What is the basis of vector space? If you have any question, you can ask. Let's have a couple of examples. So, but before Sir, I have a question.
जी बताओ, बोलो। सर R2 को लाइक 1001 के अलावा और भी तो एलिमेंट्स स्पैन कर सकते हैं, तो फिर वो फाइनाइट कैसे हुआ, लाइक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर कैसे हुआ? देखिए, at the single time, at one time, only set of two vectors can generate R square. Either the set is 1001 or some other set. All the sets which can span R square, they are finite. Okay? ओके ओके So the R square is finite dimensional. अगर हम ये ओके कह आई रहे हैं गेट। कि S सेट में इन्फिनिट मैनी, सिंगल सेट में अगर इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं जो कि किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट करेंगे, तो वो फिर इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। लेकिन यहाँ पे in a single set there are only two elements. It doesn't matter how many sets are there, but in a single set we should have finite many vectors, finite many elements. ओके So सर, गॉट इट। okay, now before discussing the examples of basis of any vector space, we need to know what is the dimension of a vector space. जी अरीब इरफान बोले। सर इसके लिए फाइनाइट सेट होना जरूरी है बेसिस निकलने के लिए, या इनफाइनाइट सेट की भी बेसिस आ सकती है? इन्फिनिट के भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल एक दी थी जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था फाइनाइट डायमेंशनल या इन्फिनिट डायमेंशनल की, आप एक एग्जांपल दें। जिस सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स था, ठीक है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसकी जो बेसिस सेट होगा वो क्या होगा? बेसिस सेट। अगर सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, मैं इन जनरल डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, डिग्री वगैरह मेंशन नहीं है, तो इसका जो सेट होगा वो क्या होगा? बेसिस सेट 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। इसको जनरेट जो करता है सेट, वो ये वाला एस सेट है। तो ये एक इन्फिनिट सेट है जो कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स को जनरेट कर रहा है। तो ये एक इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इट इज पॉसिबल कि सेट एस जो जनरेट कर रहा है, स्पेन कर रहा है वेक्टर स्पेस को, वो इन्फिनिट होगा। लेकिन इन केस ऑफ फंक्शंस एफ डिफाइन ऑन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसका कोई इन्फिनिट सेट भी नहीं है जो इसको स्पेन कर रहा हो। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ द फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि रियल वैलिड फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे f भी इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, p भी इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। लेकिन p वेक्टर स्पेस जो है, इसको जनरेट करने के लिए एक इन्फिनिट सेट हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन f जो वेक्टर स्पेस है उसको जनरेट करने के लिए को हम सेट भी नहीं लिख सकते, क्योंकि नेचर ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंट। आई होप यू गेट इट। एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट। मसलन R2 में कितने एलिमेंट्स हैं जो कि जनरेट कर रहे हैं? R2 में दो एलिमेंट्स हैं जो कि R2 को जनरेट करते हैं। तो R2 की डायमेंशन क्या होगी? 2 होगी। इसीलिए R स्क्वायर को हम 2 डायमेंशनल सेट करते हैं, ठीक है। आपने सुना ही होगा कि ये क्या है? XY प्लेन क्या है? इट इज R स्क्वायर एंड इट इज व्हाट? इट इज 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल सेट। अगर हम स्पेस सेट डिफाइन करें XYZ, ठीक है, तो ये क्या है? R क्यूब एंड व्हाट इज दिस? इट इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसकी डायमेंशन क्या है? 3। तो ये डायमेंशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक बेसिस सेट होना चाहिए जो कि वेक्टर स्पेस को जनरेट करे और वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर वो बेसिस है तो नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अगर बेसिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी, जैसे कि यहाँ पे R2 है, R3 है, या पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये सारी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं और इनकी डायमेंशन क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट, ठीक है। यहाँ पे R2 की इसकी डायमेंशन 2 है, इसकी डायमेंशन कितनी है? n एलिमेंट्स हैं तो इसकी डायमेंशन n होगी।
लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 देखें, ये एक सेट है, इसको कौन सा सेट स्पेन कर रहा है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट एलिमेंट्स और व्हाट पॉलिनोमियल्स जनरेट P2 या B2 की बेसिस क्या होंगी? एनीवन? So 1 0 or 0 1? P2, we are talking about polynomials. Polynomials. So a x or x square. 1 x and x Or square. x square. Yes. Okay. So this is the basis set which spans P2. क्यों? क्योंकि ये P2 को स्पेन करता है और ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। अगर ये इसको स्पेन करता है और लीनियर इंडिपेंडेंट भी है तो P2 की ये बेसिस होगी और P2 की डायमेंशन क्या होगी? जी जुलेमा, P2 की डायमेंशन क्या होगी? उमर खान? P2 की डायमेंशन 3. 3, यस, P2 की डायमेंशन 3 होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। So dimension of P2 is 3 and dimension of Pn is what? Dimension of Pn of x. Pn of x is what? Dimension of Pn is n of x is what? Anybody? N plus 1. N plus 1, yes. ठीक है। So remember it कि polynomials में जो dimension होती है वो डिग्री से एक ज्यादा होती है, ठीक है। I hope you get it. What is the dimension and basis of vector space? If you have any question, you can ask me. So these are some of the examples of the dimension of a vector space, basis and dimension. अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये पहली एग्जाम्पल है, इसमें S सेट IJ है, IJ 1001 R स्क्वायर को जनरेट करता है, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस होंगी और इसकी डायमेंशन क्या होगी? 2 होगी। ये वाला सेट R क्यूब को जनरेट करता है, इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन 3 है, R क्यूब की। ये वाला सेट, ये सेट किसको जनरेट कर रहा है? Is the standard basis of this vector space M22. So dimension of M22 is what? It is 4, not N. It's a typo mistake. So इसमें 4 वेक्टर्स, 4 मैट्रिसेस हैं जो कि सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस को जनरेट कर रहे हैं। तो ये इसकी बेसिस सेट होगा और ये इसको जनरेट करेगा, तो डेफिनेटली इसकी डायमेंशन क्या होगी? फिर 4 होगी। ये एक पॉलिनोमियल का सेट है, डिग्री लेस इक्वल टू 2 का, इसकी डायमेंशन 3 है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, और ये भी इसकी डायमेंशन n+1 है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हमारे पास कोई भी सेट है, यहाँ पे अगर हम इसको जनरलाइज करें, अगर हमारे पास कोई सेट है m क्रॉस n क्रॉस m, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस m मैट्रिसेस, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन द प्रोडक्ट ऑफ n इंटू m, ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। मतलब जो इसके रोज और कॉलम का प्रोडक्ट होगा वो इसकी बेसिकली डायमेंशन होगी, और उतने ही मैट्रिसेस होंगे इस S सेट में, ठीक है। आई होप यू गेट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गो अहेड, यू कैन आस्क। अब हम देखते हैं, ये जो पहले हमने डिफाइन किया था इस स्लाइड पे, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड बेसिस हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल में 1001 ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं R स्क्वायर की, फिर सेकंड एग्जांपल में R क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस हैं, एग्जांपल 3 में M22 की स्टैंडर्ड बेसिस हैं, 4 में 5 में पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड बेसिस हैं, ठीक है, डिग्री 2 और डिग्री n की। अब आर देयर एनी बेसिस which are not standard basis, okay? Means other than these sets, are there exist some basis set? Yes, answer is yes. Now we are going to discuss
that in this example कि अगर R क्यूब है, R क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. अब हम ये देखते हैं कि ये सेट जो है S जो इस एग्जांपल में गिवन है ये भी बेसिस है R क्यूब की या नहीं. ठीक है, तो in order to check whether the given set is basis set of some vector space, हमें क्या चेक करना है एक्चुअली. हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन क्या है कि वो जो सेट है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो R क्यूब को जनरेट कर रहे हैं या कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसको जनरेट कर रहे हैं. और दूसरी क्या कंडीशन है कि S सेट के जो एलिमेंट्स हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब हमें ये पता है पहले ही कि हमने कैसे चेक करना है कि कोई सेट ऑफ वेक्टर्स किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन कैसे करता है. ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना होता है, हम गिवन वेक्टर स्पेस में से कोई एक जनरल एलिमेंट लेते हैं. ठीक है, हम कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट है R क्यूब का वो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है, then if it is so then we say that the given set spans the vector space. Here it is R cube. तो हमने R क्यूब में से first we prove that span of S is R cube. हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट जनरल एलिमेंट ले लेते हैं R क्यूब में से और हम कोशिश करते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये इस इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके. तो हमने x y z को क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर्स इनमें लिखा हमने. अब हम ये देखेंगे कि ये वाकई ट्रू है या नहीं. तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, वी नीड टू फाइंड द अननोन कांस्टेंट्स, वैल्यूज ऑफ दीज अननोन कांस्टेंट्स. अगर ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं कांस्टेंट्स की, अगर ये हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है. ठीक है, अगर ये नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, मींस अगर ये लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हम कहेंगे कि x y z को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा. अब हमने सिर्फ ये चेक करना होता है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, एटलीस्ट वन सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है या नहीं. ये चीजें हमने पहले स्पैनिंग में डिस्कस की हुई हैं. इफ यू हैव एनी कंसर्न, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. तो हमने ये सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, अगर इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा. ठीक है, अगर इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, मींस इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अब इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, तो ये someone is talking, maybe Kanza, you are talking something, you want to ask some question? No? Okay, if this linear system is consistent, we say that any element of R cube can be written as a linear combination of the given vectors. So it means span of S is R cube. पहली कंडीशन प्रूव हो गई. नाउ व्हाट वी नीड टू चेक वेदर द गिवन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. इसको भी आई होप यू कैन चेक इट कि कैसे इसको हमने प्रूव करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं. हमने वो एक्सप्रेशन लिखा a1 v1, ठीक है, जैसे कि हम लिखते होते हैं a1 v1 v1 v2 एंड c1 सो c v3, इसको इक्वल टू 0 पुट किया. ठीक है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस लीनियर सिस्टम आ जाएगा. अब होमोजेनियस लीनियर सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है, जब उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो. यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसका बेसिकली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया और साथ में ये अननोन वेक्टर लिख दिया. ये आपके पास एक होमोजेनियस लीनियर सिस्टम आ जाएगा. अब अगर ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ये ax इक्वल टू 0 है, बेसिकली होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है. अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसको हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, a इनवर्स 0 हो जाएगा. तो a इनवर्स 0 इज ऑलवेज 0. इट मींस आपके जो एलिमेंट्स हैं a b c, इन तीनों की वैल्यूज क्या हैं, ये 0 हैं. अगर ये तीनों 0 हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0,
तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये सेट दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये सेट जो है, जो इस एग्जांपल में हमने देखा ये वाला, ठीक है, ये सेट आर क्यूब को जनरेट भी कर रहा है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो ये सेट क्या होगा, बेसिस होगा आर क्यूब की, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है ज्योमेट्रिकली? जी बेटा पूछे। सर ये आप जो कहते हैं कि आर क्यूब को जनरेट भी कर रहा है, इसका क्या मतलब है? मतलब इस सेट के एलिमेंट्स को यूज करके हम आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट जो है वो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे कि देखें, अगर आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं 1 0 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिसन इट वेरी केयरफुली। ये आ गया, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब अगर आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट लें, कोई भी वेक्टर लें, यहाँ पे ये वेक्टर हमने ले लिया x y z। इस x y z को मैं कह देता हूं कि ये है मे बी 3 और x is 2 and z is 4 फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो एलिमेंट है, कैन वी यूज दीज थ्री एलिमेंट्स which is e1 e2 and e3, can we use e1 e2 e3 to get 3 to 4? Can we use who was talking here? सर मैं था सफवान। Safwan, हाँ जी, Safwan, can सर we कर use सकते e1 e2 and कर e3 सकते हैं। to get 3 to 4? यस सर। हाँ, अगर हम ये कह दें कि 3 times 1 0 0 plus 2 times 0 1 0 plus 4 times 0 0 1, अगर हम ये कर दें, ठीक है, यहां पे, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो तीन एलिमेंट्स हैं e1 e2 e3, तीन वेक्टर्स जो हैं, ये जनरेट कर रहे हैं 3 2 4 को। आर दे जनरेटिंग? यस सर। जनरेट करने का मतलब क्या है? वी कैन मेक इट, ठीक है, ठीक है सर। वी कैन ऑब्टेन इट। अब e1 e2 e3 आर क्यूब के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं? जी सर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आर क्यूब को जनरेट कर रहे हैं e1 e2 एंड e3, ठीक है, है। एंड these are standard unit vectors। तो स्पैनिंग का मतलब क्या है कि आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट लें, उसको इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर लिख सकें, इसका मतलब क्या है कि ये तीन एलिमेंट्स जो हैं, we can use these three vectors in order to get any element in R cube. This is what spanning is. सर तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 होता तो फिर इसका मतलब था कि ये नहीं जनरेट कर सकते। नहीं कर सकता। देखें, डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब क्या है कि आपने 3 इंटू ये लिखा, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर इन ऑर्डर टू 3 इंटू ये वेक्टर प्लस 2 इंटू ये वेक्टर प्लस 4 इंटू दिस वेक्टर इन ऑर्डर टू गेट दिस। अगर ये जो तीन वेक्टर्स हैं e1 e2 e3, अगर हम इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ले लें और इनका डिटरमिनेंट 0 हो, तो हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन which gives us this, we cannot write it. ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई। So this is what spanning means. अब हम ये कह रहे हैं कि कोई तीन वेक्टर्स डिफरेंट हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 1 में तीन डिफरेंट वेक्टर्स हैं। कैन यू होल्ड फॉर अ सेकेंड समवन? प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, लेट्स बैक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, जो कि आर क्यूब को जनरेट कर रहे हैं। अब ये वेक्टर क्या हैं? लेट अस बेसिकली, अगर हम देखें कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स ये हैं और ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है? 1 -1 एंड 0। 1 x है, y जो है वो -1 है और 0 z है। तो ये वेक्टर क्या होगा? बेसिकली ये वेक्टर होगा इस टाइप का। यहाँ पे अगर हम देखें y, अगर यहाँ पे ये y है तो 1 इसका ये है 1 और -1 जो है वो इस तरफ होगा यहाँ पे -1, ठीक है, और z 0 ये है, ठीक है। तो आपका जो वेक्टर होगा
वो x is 1 y is -1, तो ये वाला वेक्टर जो है वो यहाँ पे आएगा तकरीबन, ये वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर 1 -1 0 है, ठीक है। ये एक वेक्टर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा वेक्टर जो है 1 1 0, 1 1 0, अगर 1 यहाँ पे और y यहाँ पे 1 है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे तकरीबन आएगा, ठीक है। दिस इज योर वेक्टर 1 1 0। तीसरा वेक्टर 1 1 1 है, तो वो यहाँ पे होगा क्योंकि x1 y1 z1 z1 यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो ये वेक्टर है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं, कैन दीज वेक्टर्स जनरेट आर क्यूब। तो यहां पे आपके पास एक नया आर क्यूब बनेगा जो कि इन तीन वेक्टर्स से जनरेट होगा, 1 1 1 1 0 0 एंड 1 1 0 एंड 1 -1 0। ये एक नया आर क्यूब होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के साथ आर क्यूब नहीं होगा, यहां से एक और आर क्यूब बनेगा, फॉर एग्जांपल मे बी इन पिंक कलर, नो नॉट इन पिंक कलर, मे बी ग्रीन कलर, यस। ये जो आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनेगी, आर क्यूब एक बनेगी, ठीक है, इन तीन वेक्टर्स को लेके। ये आपका पहले वाला वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर v1, दिस इज योर v2 एंड दिस इज योर v3, ठीक है। तो ये आपका v1 वेक्टर है, ये आपका v2 वेक्टर है और ये आपका v3 वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से एक नया आर क्यूब बनेगा विच इज न्यू आर क्यूब। पुराने वाला आर क्यूब क्या था? स्टैंडर्ड, जिसमें ब्लू लाइंस हैं, ये आर क्यूब। देखिए ये दो डिफरेंट आर क्यूब्स हैं। पहले एक आपके पास स्टैंडर्ड आर क्यूब है जिसमें यूनिट वेक्टर्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेकिन ये नया आर क्यूब जो ग्रीन वेक्टर्स के साथ बना है, ये एक आर क्यूब है जिसमें जो वेक्टर्स हैं दे आर नॉट म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आर क्यूब बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो हम ये आप यूज कर रहे हैं दैट इज अ स्टैंडर्ड आर क्यूब। लेकिन इन तीन वेक्टर से जो हम आर क्यूब बनाएंगे वो स्टैंडर्ड नहीं है। और यहां पे हमने क्या वेरीफाई किया बेसिकली कि ये जो एस वेक्टर है इस एग्जांपल में, ये जनरेट करते हैं इस ग्रीन वाले आर क्यूब को, और ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने आपको ग्राफिकली बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसका मतलब क्या है, कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, उसका स्केलर मल्टीपल भी नहीं है, तीनों एक दूसरे से बेसिकली डिफरेंट है। दिस इज व्हाट वी से linearly independent geometrical. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. This is a very new kind of concept for you people. आप इसको थोड़ा सा इसके बारे में सोचें। Let's have a break of 10 minutes. इसको जहन में रखें इसको। अगर कोई इशू होता है तो you can discuss me after the break, after 10 minutes. ठीक है? अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो you can ask me. अभी 11:10 नहीं 11:12 हुए हैं, 11:20 या 22 पे हम वापस आते हैं, फिर हम इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 10 minutes. See you again then. If you have any question, you can ask me. So we were discussing about the basis of a vector space. In this example, we saw that there are some other vectors which can generate R-cube. In this example, this green one is the new R-cube which we have basically constructed. Now, any element in new this one, in this new R-cube, any element we can obtain, for example, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है x, y, z, तो इस x, y, z को हम as a linear combination of these three vectors हम लिख सकते हैं, और ये तीनों वेक्टर्स linearly independent है। जैसे कि स्टैंडर्ड ब्लू आर क्यूब में फॉर एग्जांपल इसमें हम x1, x, y, z अगर कोई इस नए आर क्यूब ग्रीन आर क्यूब में ये वेक्टर्स हैं तो इसको हम linear combination of these three vectors जो कि S में है इसकी linear combination के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल C1
V1 means V1 is 1 minus 1 0, C2 V2 is 1 1 0, and C3 is 9 into is 1 1 1. So कोई भी एलिमेंट है इस नए आर क्यूब में ग्रीन वाले, तो उस एलिमेंट को हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दीज थ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो ये एक नया न्यू काइंड ऑफ आर क्यूब हमने बना लिया जो कि डिफरेंट होगा द स्टैंडर्ड आर क्यूब से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बेसिस इज नॉन स्टैंडर्ड बेसिस। अगर हम इसी चीज को आर स्क्वायर के लिए देखें, फॉर एग्जांपल चलो नेक्स्ट, शायद मैंने एग्जांपल लिखी हो इसकी, नहीं लिखी हुई यहाँ पे। अगर हम आर स्क्वायर को कंसीडर करें तो ग्रीन में फॉर एग्जांपल हमारे पास, सॉरी ब्लू में हम देखते हैं, अगर स्टैंडर्ड आर क्यू आर स्क्वायर ये है हमारे पास, ठीक है, इसके स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं 1 0 और 0 1, तो ये इसका ये एक स्टैंडर्ड आर स्क्वायर है। हम एक नया आर स्क्वायर बना सकते हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है विच इज 1 1 एंड अनदर वेक्टर विच इज दिस वन विच इज -1 1, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक नया आर स्क्वायर आएगा, दिस वन फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये आपके पास अब एक नया आर स्क्वायर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेसिस सेट है वो डिफरेंट है जो स्टैंडर्ड बेसिस सेट है। ये दो वेक्टर्स है जो कि स्पेन कर रहे हैं आर स्क्वायर को, और ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इससे आपके पास एक नया आर स्क्वायर बन गया है जो कि डिफरेंट है स्टैंडर्ड आर स्क्वायर से, ठीक है। तो यू कैन वेरीफाई दैट this set spans R square and this set is linearly independent as well. Okay. So if you have any question, you can ask me. Otherwise, let's move forward. This one. अब ये देखें एक सेट है एग्जाम्पल 2 में M32. M32 is set of all matrices of order 3 cross 2. अगर हम लिखें M32 को, let's write it in blue. M32 को अगर हम लिखें तो ये किस टाइप का सेट होगा, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, A B C D E F, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे A B C D ये क्या हैं, D E F, दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये इस किस्म का एक सेट होगा जिसमें सारे के सारे 3 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं। अब इसकी स्टैंडर्ड बेसिस हम कैसे लिख सकते हैं, आप इस मैट्रिक्स को देखें और सबसे पहले आप जो इसकी पहली एंट्री है, पहली एंट्री पे 1 लिख दें, बाकी सारे 0, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे। फिर दूसरी एंट्री पे 1 लिख दें, बाकी सारे 0, जैसे कि यहाँ पे। फिर तीसरी एंट्री पे 1, बाकी सारे 0, चौथी, फिर आपने पांचवी लिख दी, फिर छठवीं। दीज आर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ M32, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड बेसिस M22 की लिखी थी, which is 1 0 0 0 0 1 0 0 and 0, जैसे कि इसे आप देख सकते हैं। So this is basically the standard basis set of M32. हमने ये प्रूफ करना है कि ये इसका बेसिस सेट है या नहीं। तो आई होप यू कैन डू इट। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये स्पैन करता है। स्पैन करने के लिए व्हाट डू वी नीड, कि हम इसका कोई भी एलिमेंट लेते हैं M32 का, फॉर एग्जाम्पल यही एलिमेंट ले लें आप, A B C D E F। तो कैन वी राइट दिस थिंग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर्स A 1 0 0 0 0 0 प्लस B 0 1 0 0 0 0, ठीक है, फिर प्लस C एंड 0 0 1 0 0 0 C, फिर D 0 0 0 1 0 0, फिर प्लस E टाइम्स 0 0 0 0 1 0 और प्लस B टाइम्स 0 0 0 0 0 1। तो इस तरह हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो ये डेफिनेटली स्पैन करेगा आर स्क्वायर को। फिर हमने चेक करना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए आप क्या करते हो,
ये जो राइट हैंड साइड वेक्टर है इसको आप क्या ले लेते हैं, इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 एंड 0। फिर हम चेक करते हैं कि आफ्टर राइटिंग दिस एक्सप्रेशन डू वी ऑब्टेन ऑल द कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू e इक्वल टू f, अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट 0 आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये सेट बेसिस सेट है n32 का। और n32 की अगर बेसिस ये सेट है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ m32 is what, 3 multiplied by 2 which is row into column and 6 which is 6, and these elements are also 6 elements. So dimension of 32 is 6. I hope you get it. If you have any question you can ask me. Basis of a vector space, अब हमने एक polynomial ले लिया, polynomial of degree 3, इसका basis set क्या होगा हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसके बेसिस सेट में 1x x square x cube होगा, ठीक है, जो इसका बेसिस होगा। ये सेट इसको जनरेट करता है और ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है इसके वेक्टर्स। तो वी कैन से दैट दिस इज अ बेसिस सेट ऑफ P3। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी डायमेंशन 4 होगी। अच्छा, स्पैनिंग और लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे, आई होप यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल अगर लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो ये सारे कांस्टेंट 0 हैं। क्यों 0 हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी क्यों 0 हैं ये सारे कांस्टेंट? वी कैन इमीडिएटली पुट देम इक्वल टू 0, बिकॉज अगर हम इसको a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब को इक्वल टू 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ठीक है। अब दो पोलिनोमियल्स कब इक्वल होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से a भी 0 आ जाएगा, b भी 0, c 0, d 0, तो ये सारे 0 हैं, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। इसी तरह हम इसको स्पैनिंग सेट भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू कैन डू इट। So this is basically the basis set of P3. We can similarly generalize the basis set of Pn as well. If you have any question, you can ask me. Otherwise, we are going to move forward. This is a very important theorem, unique representation of basis vectors. अगर हमारे पास S एक सेट है V1, V2, so on Vn, जो कि basis set है V का, तो कोई और एलिमेंट V का जब हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और द वेक्टर्स इन S V1, V2, so on Vn, तो ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। सॉरी, लेट मी गो बैक। यहाँ पे, ठीक है, बेसिस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी और वेक्टर जो कि V का कोई और एलिमेंट है उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स। यूनिकली यानी कि इन अ सिंगल वे, वी कैनॉट एक्सप्रेस देम, वी कैनॉट एक्सप्रेस एनी वेक्टर V in the vector space into some other as a linear combination of some other vectors. ये पॉसिबल नहीं है, यूनिकली एक्सप्रेसिबल होगा। तो इसको प्रूव करना है कि ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, हम सपोज करेंगे कि यूनिक नहीं है, हम V को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2 इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं विद सम कांस्टेंट्स A1, A2, so on An, और V को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, so on Vn एक्सप्रेस कर सकते हैं विद सम अदर कांस्टेंट्स, ठीक है। हमने अस्यूम कर लिया कि ये दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं विद टू डिफरेंट काइंड ऑफ कांस्टेंट्स A1, A2 और B1, B2 so on। तो हमने प्रूव करना है कि अगर ये यूनिक है तो A1 B1 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है और so on An Bn के इक्वल है, ठीक है। इट्स वेरी इजी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें
ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आप अगर कोफिशिएंट सेम करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है, अगर ये बेसिस सेट है और लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 पुट करें तो डेफिनेटली इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 के होंगे, 0 के इक्वल होंगे। इट्स अ कंडीशन इन द लीनियर इंडिपेंडेंट सेट्स, इन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर ये सारे इक्वल टू 0 होंगे तो ये सारे के सारे इक्वल होंगे। इट मींस कि दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करती, बेसिकली सिंगल रिप्रेजेंटेशन ही एग्जिस्ट करती है। इट्स वेरी इजी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। some other theorems, हम इसके सिर्फ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आपने इसकी स्टेटमेंट्स को याद रखना है। अगर आपने प्रूफ देखना है इनका तो यू कैन कंसल्ट द बुक, ठीक है, बहुत आसान प्रूफ्स हैं इनके। आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ वेरी इजीली। पहला थ्योरम क्या है, ऑल बेसिस फॉर अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, पहले जब हमने आर क्यूब की बेसिस लिखी थी, स्टैंडर्ड बेसिस, जो कि कितनी बेसिस थी, 3। फिर हमने एक और सेट को डिफाइन किया एस, जिसमें डिफरेंट बेसिस थी, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3 ही थे। तो अगर आर क्यूब एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो उसका जो बेसिस सेट है, जितनी भी बेसिस होंगी उसकी, सारों के सारों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये नहीं हो सकता कि एक आर क्यूब है, उसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसमें 3 वेक्टर्स हैं, और जो नॉन स्टैंडर्ड वेक्टर है नॉन स्टैंडर्ड वेक्टर्स का जो सेट है उसमें 4 वेक्टर्स बेसिस नहीं बना सकते। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसकी अगर डायमेंशन फॉर एग्जांपल n है, जैसे कि आर क्यूब में डायमेंशन 3 है, तो 3 ही वेक्टर्स जो हैं वो उसकी बेसिस बना सकते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हों चाहे नॉन स्टैंडर्ड हों। ऐसे नहीं हो सकता कि 4 वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस बना दें आर क्यूब की, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली 2 वेक्टर्स भी जो हैं वो आर क्यूब की बेसिस नहीं बना सकती, 3 ही होंगे। तो किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस सेट होती है वो उसमें जितनी भी बेसिस हों सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, अगर आर क्यूब है, ठीक है, आर क्यूब के स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। अगर हम एक एस सेट ले लेते हैं, एस सेट जो कि 1 0 0 है सिर्फ, तो ये क्या जनरेट करेगा, आर क्यूब यहाँ पे है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है। Can anyone tell me what if we choose this set, तो ये क्या जनरेट करेगा आर क्यूब में? Anyone? अगर हम सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें इस सेट के, तो वो क्या जनरेट होगा? एक ही एलिमेंट है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस है उसको जनरेट करेगा, क्योंकि आपके पास 1 0 0 है सिर्फ, ठीक है। अगर आप एक और सेट ले लें, लेट मी चूज द सेट, एक और सेट ले लें, ये वाला 1 0 0 और 0 1 0, ये सेट क्या जनरेट करेगा आर क्यूब में? एनीवन? Safwan, are you there? सर समझ आ गई है, आ गई है समझ सर। ये क्या एस जो सेकंड मैंने एस लिखा है ये क्या जनरेट करेगा? सर ये इस वाली लाइन, इस वाले वेक्टर के ऊपर, इस वाले प्लेन के ऊपर जनरेट करेगा, बेसिकली एक्स वाई प्लेन के ऊपर। हाँ, ये वाला जो वेक्टर है एस सेट जो है ये एक्स वाई प्लेन को जनरेट करेगा, क्योंकि इसमें 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स जो हैं वो एक्स वाई प्लेन को जनरेट करेंगे। Unless we have all 3 vectors, all 3 vectors will generate the whole R cube. There is a question in the chat window, XY plane, Hamza, yes, good. So similarly, we can see that in R square, अगर हमारे पास R square है, ठीक है, तो R square ये होता है XY, ठीक है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा एक 1 0, ठीक है,
और यहाँ पे ये 0 1। अगर हम एक S सेट लेते हैं जो कि सिर्फ 0 1 है, तो ये क्या जनरेट करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ 0 1 y एक्सिस को जनरेट करेगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि बेसिस सेट जो हैं, अगर आर स्क्वायर के जितने भी हों उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 ही होंगे। ठीक है, अगर हम एक एलिमेंट कम लेते हैं, मतलब एक एलिमेंट लेते हैं, तो वो पूरा आर स्क्वायर को जनरेट नहीं कर सकता, वो किसी एक स्ट्रेट लाइन को जनरेट करेगा। सिमिलरली आर क्यूब में एक एलिमेंट जो है वो एक लाइन को जनरेट करेगा, दो एलिमेंट आर क्यूब में एक प्लेन को जनरेट करेंगे। तो सारी की सारी बेसिस जो हैं वो उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज ये जनरेट नहीं करेगी उस स्पेस को। दूसरा थ्योरम क्या है? Let V be an n-dimensional vector space having n vectors v1, v2, vn as a basis. Then, if पहला part, A part, if a set in V has more than n vectors, then it is linearly dependent. ठीक है? अगर B part क्या है? अगर a set V has fewer than n vectors, then it does not span V. Yeah, it is obvious. Let's have a couple of examples. तो examples में अगर जैसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर r क्यूब है फॉर एग्जांपल, या r स्क्वायर है, ठीक है, r स्क्वायर, इसमें अगर हम कोई भी सेट ले लें जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, ठीक है, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम which is maybe 1 1 या 2 2, ठीक है, 2 2 एक और एलिमेंट ले लें, ठीक है। Now you can see that, you can prove that these three vectors are not linearly independent. क्यों linearly independent नहीं है? क्योंकि ये जो तीसरा वेक्टर है ये डिपेंड कर रहा है पहले दो वेक्टर्स पे। We can write 2 2 as a linear combination of 2 times first element and this 2 times second element. It means the third element is not linearly independent. It depends on the first two vectors. So this set of 3 vectors is not linearly independent. So it is obvious. ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या था थ्योरम में कि अगर बेसिस सेट हम ये ले लें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था 1 0, तो ये आर स्क्वायर को स्पेन नहीं करेगा। Span of S is not equal to R square, क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को जनरेट करेगा। बेसिकली span of S यहाँ पे सब स्पेस ऑफ R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस सेट में अगर n से कम एलिमेंट हैं तो ये R स्क्वायर को स्पेन नहीं करेगा, और n से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। दिस इज व्हाट दैट थ्योरम टेल्स अस। I hope you get it. If you have any question, you can ask me. तीसरा थ्योरम क्या है? Let V be a n-dimensional vector space, and let S be a set with exactly n vectors. Then S is a basis for V if and only if S spans V or S is linearly independent. ठीक है। ऊपर वाले थ्योरम से हमने क्या डिड्यूस किया? ऊपर वाला थ्योरम जो है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अगर उसमें n से ज्यादा वेक्टर्स होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होगा, n से कम वेक्टर्स होंगे तो वो स्पेन नहीं करेगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस जो है, दोनों केसेस में कोई एक कंडीशन वायलेट हो रही है। लेकिन तीसरे थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसमें n वेक्टर्स का सेट है, तो बेसिस के लिए दो कंडीशन है, स्पेनिंग एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। लेकिन इस केस में अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और S सेट में n वेक्टर्स हैं, तो कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ठीक है, कोई एक कंडीशन वैलिडेट हो जाती है, तो दूसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। या तो आप उस सेट को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दें या प्रूफ कर दें कि वो स्पेनिंग सेट है वेक्टर स्पेस का, दोनों में से कोई एक चीज प्रूफ कर दें तो वो बेसिस हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि बेसिस जो एस सेट आपने लिया उसमें उतने ही एलिमेंट्स हों जितनी की V की डायमेंशन है।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि हमारी लाइफ को आसान बना देता है। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर एस सेट जो है, जो किसी भी वेक्टर स्पेस, मसलन अभी हमने जो एग्जांपल देखी आर क्यूब में अगर 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो वो डेफिनेटली आर क्यूब को जनरेट करेंगे। हमें स्पेनिंग की जरूरत नहीं है चेक करने, ठीक है। आई होप यू गेट इट। फोर्थ थ्योरम है, इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो W की जो डायमेंशन होगी वो V की डायमेंशन से लेस और इक्वल होगी, ठीक है। ऑब्वियसली सब स्पेस की डायमेंशन लेस होगी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से। इक्वल किस केस में होगी? जब आपके पास W और V जो है वो सेम होंगे, क्योंकि V इज अ सब स्पेस ऑफ इटसेल्फ। तो इन दिस केस डायमेंशन दोनों की सेम हो जाएगी। ये इसके लिए हम आगे चल के एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। एग्जांपल यहाँ पे देखें, इन थ्योरम्स के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं यहाँ पे। लेट्स डिस्कस दीज एग्जांपल। अगर हमारे पास पहली एग्जांपल में क्या है, लेट S बी अ सेट 13 7 and -26 -14। गिव अ रीजन व्हाई S इज नॉट अ बेसिस ऑफ R स्क्वायर। क्यों नहीं है R स्क्वायर की बेसिस? क्यों? क्योंकि ये सेट जो है इसके वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। -26 -14 can be obtained by multiplying the first vector with -2। तो ये एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये बेसिस नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी एग्जांपल में देखें, एस हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं और ये सेट किसका सबसेट है? आर क्यूब का। आर क्यूब का है ना, क्योंकि हर वेक्टर में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये आर क्यूब को बिलोंग करता है। दिस बिलोंग्स टू आर क्यूब। अब एस सेट है जिसमें 4 वेक्टर्स हैं और ये आर क्यूब का सबसेट है। हम बता सकते हैं कि ये बेसिस है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि आर क्यूब की डायमेंशन 3 है और इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, बाय अ थ्योरम डिफाइंड ऑन द प्रीवियस स्लाइड। कि हम कहते हैं कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से ज्यादा हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो वो बेसिस नहीं हो, ठीक है। आई होप यू गेट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। यहाँ पे इसी तरह की 2 एग्जांपल्स और हैं, क्यों बेसिस नहीं है, ठीक है। हमने ये देखना है। आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। आई गिव यू फ्यू सेकंड्स टू लुक एट दीज एग्जांपल्स। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। लुक एट दीज एग्जांपल्स। I hope you have seen them. If you have any question, you can ask me. If no, we are going to move forward. अच्छा, अब हम देखते हैं कि लीनियर सिस्टम्स और बेसिस और डायमेंशन का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हमारे पास अगर कोई, पहले हम होमोजेनियस लीनियर सिस्टम को देखेंगे और बाद में हम नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल जो गिवन है होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है। इसमें 4 इक्वेशंस हैं और 6 अननोन्स हैं, ठीक है। अगर इस होमोजेनियस लीनियर सिस्टम को हम सॉल्व करें तो डेफिनेटली आपके पास फ्री वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। आई होप यू कैन सॉल्व इट। हमें पता है कि हमने ऑलरेडी इस तरह के सिस्टम को सॉल्व किया हुआ है यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। We write the corresponding augmented matrix, we reduce it into reduced echelon form, and then we can directly write the solution of this homogeneous linear system, which is this one. ये इसका solution आ गया जिसमें आपके पास x2 फ्री वेरिएबल है, x3 फ्री वेरिएबल है, x4 फ्री वेरिएबल है, x5 फ्री वेरिएबल है, x6 की वैल्यू है और x1 की वैल्यू है,
ठीक है, इसको हम वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, और इसको अगर हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं, फ्री वेरिएबल्स हैं, आर एस टी, अगर इसको हम बाहर लिखें, बाहर लेके जाएं, तो हमारे पास ये 3 वेक्टर्स हैं जो कि ये 3 वेक्टर्स हैं, और ये देखें कि कोई भी सॉल्यूशन है, अगर इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन, वो इन 3 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के? इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर उन इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस को एक सेट की फॉर्म में लिख दें, तो वो एक क्या होगी? सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन स्पेस होगी। उस सारे सॉल्यूशंस को, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस को हम सॉल्यूशन स्पेस ऑफ अ होमोजेनियस लीनियर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन स्पेस या इसको नल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है? 0 है, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे इस लीनियर सिस्टम का पुट करें, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो जो सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं इस होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के, वो 0 के इक्वल बेसिकली मैप करते हैं इस सॉल्यूशन स्पेस को। ठीक है, तो इसको नल स्पेस भी कहते हैं या सॉल्यूशन स्पेस कहते हैं। नल स्पेस हम आगे चल के इसको मजीद डिस्कस करेंगे। नल स्पेस इज व्हाट? is the set of is the space of all solutions of this homogeneous linear system। और वो जो स्पेस होगी वो किस सेट की सब स्पेस होगी? देखें, ये जो स्पेस होगी जो जनरेट करेंगे ये 3 वेक्टर्स, ये सब स्पेस होगी किस वेक्टर स्पेस की? अगर आपके पास ये देखें, ये एक एलिमेंट है, तो ये किसको बिलोंग करेगा इन जनरल? जी अरीब बोले। सर ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ना, क्योंकि इनमें वेरिएबल्स काफी ज्यादा हैं। लीनियरली डिपेंडेंट अभी हमने नहीं देखा। अभी हमने ये देखा है कि ये सॉल्यूशन है होमोजेनियस लीनियर सिस्टम का, और ये सॉल्यूशन जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 3 वेक्टर्स का। अगर हम ये कह देते हैं कि ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, और ये v3 वेक्टर है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन स्पेस होगी, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, उसको जनरेट कौन सा सेट करेगा? स्पेन कौन सा सेट करेगा सॉल्यूशन स्पेस को? v1, v2 और v3। ये v1, v2, v3 जो है ये जनरेट करेंगे किसको? सॉल्यूशन स्पेस को। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन स्पेस का कोई भी एलिमेंट अगर हम ले, मसलन ये एलिमेंट हमने लिया सॉल्यूशन स्पेस का, तो ये इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन स्पेस होगी उसको स्पेन क्या करेगा? स्पेन करेगा ये 3 वेक्टर्स v1, v2, v3। ठीक है, ये सॉल्यूशन स्पेस को स्पेन करेंगे, जनरेट करेंगे। और सॉल्यूशन स्पेस बेसिकली इन जनरल किसको बिलोंग करती है? ये कितने एलिमेंट्स हैं? ये किसका वेक्टर होगा? ये वेक्टर होगा R6 का, क्योंकि इसमें 6 कंपोनेंट्स हैं। ये R6 का वेक्टर होगा। इट मींस सॉल्यूशन स्पेस जो है वो उसको स्पेन क्या कर रहा है? v1, v2, v3, ये सॉल्यूशन स्पेस है। ठीक है, सॉल्यूशन स्पेस को स्पेन कर रहे हैं ये 3 वेक्टर, और ये सब स्पेस किसकी होगी? ये R6 की सब स्पेस होगी। ठीक है, R6 की स्पेस सब स्पेस होगी सॉल्यूशन स्पेस। क्यों? क्योंकि इन जनरल कोई भी सॉल्यूशन एलिमेंट जो है वो ये वाला, ये R6 को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका स्पेनिंग सेट जो है वो v1, v2, v3 है, जो कि ये 3 वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं सॉल्यूशन स्पेस को। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये 3 वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है, अगर ये 3 वेक्टर्स हम प्रूव कर दें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये बेसिस बनाएंगी सॉल्यूशन स्पेस की। ये S सेट जो होगा v1, v2, v3, ये क्या होगा? ये बेसिस होगा, बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ
this solution space of the homogeneous linear system. ठीक है, तो इस solution space की basis भी हमें पता चल गई। अच्छा, इस solution space की dimension क्या होगी? नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट्स 3 है, तो इसकी जो होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है, इसको इसका स्पेनिंग सेट हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको हमने बेसिस सेट कैलकुलेट कर लिया, और ये एक सब स्पेस होगी, सॉल्यूशन स्पेस एक सब स्पेस होगी किसकी? R6 की। R6 क्या है? हमें पता है कि वेक्टर स्पेस है। ये सॉल्यूशन स्पेस उसकी सब स्पेस होगी, जिसकी बेसिस हमें पता है v1 v2 v3, और ये बेसिस इसकी डायमेंशन भी हमें पता चल गई। कितनी डायमेंशन है इसकी? 3 डायमेंशन। ठीक है, तो किसी भी होमोजेनियस लीनियर सिस्टम को अगर हम सॉल्व करें तो उसमें इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, और वो इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस एक सब स्पेस बनाते हैं R6 की। यहाँ पे अगर 5 वेरिएबल्स होंगे तो R5 की सब स्पेस होगी, अगर 3 वेरिएबल्स हैं अननोन वेरिएबल्स तो R³ की सब स्पेस होगी। वो सॉल्यूशन स्पेस एक सब स्पेस होगी, और उसकी बेसिस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आप सॉल्यूशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें और पैरामीटर्स को बाहर ले लें, तो जो वेक्टर्स आपके पास बचते हैं, ये वेक्टर्स जो हैं बेसिकली स्पैनिंग और बेसिस बनाते हैं सॉल्यूशन स्पेस की, और इसको हम नल स्पेस भी कहते हैं। तो आई होप यू गेट इट all these concepts. If you have any question you can ask me. ठीक है, ये मैंने वही लिखा हुआ है सब कुछ जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये वेक्टर्स जो हैं v1 v2 v3, ये क्या बनाएंगे? बेसिस बनाएंगे सॉल्यूशन स्पेस की। और सॉल्यूशन स्पेस क्या है? एक सब स्पेस बन जाएगी किसकी? R6 की। यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, जो कि लास्ट थ्योरम था कि डायमेंशन ऑफ अ सब स्पेस इज लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। अब अगर यहाँ पे हम W को लें एग्जांपल 1 में, तो W एक सेट है, ये किसका सबसेट है? ये सबसेट है किसका? R³ का। क्यों? क्योंकि W में एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड 3 टुपल्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स x, y and this one 2x plus 3y। अब अगर आप देखें तीसरा एलिमेंट जो है वो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है? 3 ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं, तो R³ का ये सबसेट होगा। अब अगर ये जब सब स्पेस बनेगा तो सब स्पेस पहले प्रूफ करना है इसको कि ये सब स्पेस है या नहीं। तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन और क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू कैन डू इट। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी बेसिस और डायमेंशन क्या होंगे। इसके किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है इन 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये स्पैनिंग सेट इसका है और ये दोनों वेक्टर्स का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो सब स्पेस बनती है उसका स्पैनिंग सेट अगर ये है, बेसिस सेट ये है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन 2 होगी इसकी, क्योंकि ये सब स्पेस है। तो क्यों? क्योंकि W के जो एलिमेंट्स हैं वो उनको दो वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। सो इसकी डायमेंशन 2 होगी ना। Qs of 1, open your mic and talk to me. What is your confusion? सर बेसिकली जो थर्ड एलिमेंट है 2x plus 3y, ये फर्स्ट 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो इसलिए ये 2 डायमेंशन है। इसलिए 2 डायमेंशन है या नहीं, लेकिन आप ये देखें कि किसी भी एलिमेंट को, W के किसी भी एलिमेंट को हम किन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, x और y और साथ में ये वेक्टर्स हैं 102 और 1013, ये 2 वेक्टर्स हैं। देखें कोई भी एलिमेंट अगर x y 2x plus 3y है ना, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x कॉमन ले लें, ठीक है, 1 0 2 आ जाएगा, फिर y कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0 1 3। अब ये क्या है? बेसिकली ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे x y कंफ्यूज कर रहे हैं आपको,
एक्स वाई को आप सर नहीं C1 102 और y को आप C2 ले लें, इट इज सर, अगर यहाँ पे हाँ थर्ड एलिमेंट जो सर थर्ड एलिमेंट जो है 2x + 3y जो है सर, हाँ उसके अंदर अगर +4z होता हाँ तो फिर ये 3 डायमेंशन हो जाना। 3 वेक्टर्स हो जाते हैं डेफिनेटली, ठीक है, तो वो 3 डायमेंशनल हो जाता, ठीक है, थैंक यू। लेकिन z हो नहीं सकता इसमें, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हाँ बेसिकली हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक्स वाई जी लें, एक एलिमेंट को एक्स वाई जी लें, इस बेसिकली एक्स वाई जी जो है वो इक्वल है 2x + 3y। तो ये जो एलिमेंट है इसको दो एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बेसिस सेट आपके पास ये बन जाएगा, ये बेसिस सेट है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं तो इसकी डायमेंशन 2 होगी। Someone is talking without muting his or her mic. शोर आ रहा है पीछे, काइंडली माइक अपना म्यूट कर लो। So if you have any further question you can ask me. यहाँ पे देखें ये एक सबस्पेस है S, ठीक है, इसका W जो है स्पैन ऑफ S इज W, तो हमने प्रूव करना है कि W की डायमेंशन 2 है, ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? कोई एक वेक्टर जो है वो दूसरे दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बेसिकली इसकी जो स्पैनिंग सेट है उसमें तो 3 वेक्टर्स हैं, लेकिन एक बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा v3 वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो वेक्टर निकाल दें और एक और टी सेट हम लिखें जिसमें सिर्फ v1 और v2 वेक्टर्स लिख दें, अब v1 v2 भी जनरेट करेंगे, क्या करेंगे? स्पैन करेंगे किसको? ये स्पैन करेंगे, इसका जो स्पैन होगा v1 v2 ये क्या होगा? w होगा। तो w को ये s सेट भी स्पैन कर रहा है और t सेट भी स्पैन कर रहा है। s सेट स्पैन तो कर रहा है लेकिन इसमें के जो वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है आप उसको अगर हम एलिमिनेट कर दें तो जो बाकी वेक्टर्स होंगे वो भी डेफिनेटली स्पैन करेंगे w को, और ये जो दो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, तो ये दो वेक्टर्स होंगे बेसिस होंगी उस w सबस्पेस की। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी फिर? इस बेसिस में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो w की जो बेसिस होंगी, w की जो डायमेंशन होगी वो 2 होगी, ठीक है। I hope you get it. If you have any question, you can ask me. Spanning set में जी जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया होया क्या है। Spanning set में अगर आपके पास let us discuss this with the help of some example. यहाँ पे पीछे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलें दोबारा कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है S, मतलब 1 0 0 1 और 2 2, हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी, ठीक है। ये सेट जो है ये स्पैन करेगा R2 को, ये सब सेट है R2 को, R2 का ये R2 को स्पैन करेगा, लेकिन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये बेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अगर v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ठीक है, 3 वेक्टर्स हैं इस सेट में, ये तीनों R2 को स्पैन कर रहे हैं। You can check it. Any element of R2 can be written as a linear combination of these 3 vectors. लेकिन ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा वेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है पहले दो वेक्टर्स पे। इसको हम 2 × 1 0 + 2 × 0 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेसिकली 2v1 + 2v2, ठीक है। अब ये तीसरा वेक्टर जो है ये पहले दो वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पूरे सेट को लीनियरली डिपेंडेंट बना रहा है। तो जो एलिमेंट डिपेंड कर रहा है दूसरे एलिमेंट के, उसको हम निकाल दें इस सेट में से। हमने एक और सेट ले लिया T, जिसमें से जो डिपेंडेंट एलिमेंट है वो हमने निकाल दिया, जो सिर्फ और सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उसको हमने लिख लिया। अब ये T सेट जो है वो S का सबसेट है, ठीक है। अब ये T सेट जो है ये पहले दो वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे एलिमेंट के, उसको हम निकाल दें इस सेट में से। हमने एक और सेट ले लिया T, जिसमें से जो डिपेंडेंट एलिमेंट है वो हमने निकाल दिया, जो सिर्फ और सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उसको हमने लिख लिया। अब ये T सेट जो है वो S का सबसेट है,
अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि टी सेट जो है ये भी स्पेन करता है आर स्क्वायर को, और टी सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों सेट्स हैं आर और सॉरी एस और टी जो है, ये दोनों सेट्स जो हैं ये स्पेन करते हैं आर स्क्वायर को। इट मींस स्पेन ऑफ एस और स्पेन ऑफ टी जो है ये दोनों क्या है, सेम है, विच इज व्हाट आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एस जो है वो बेसिस सेट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं और डायमेंशन 2 है, ये बाय प्रीवियस थ्योरम। टी एक ऐसा सबसेट है जो कि एस का भी सबसेट है। टी और एस दोनों स्पेन कर रहे हैं आर स्क्वायर को, तो टी जो है वो बेसिस सेट होगा, एस बेसिस सेट नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन दैट एग्जांपल, इन दैट यहां पे। ठीक है, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस। अब एस एक सबस्पेस को जनरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन एस बेसिस सेट नहीं है। तो जो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो हम इसमें से निकाल दें तो वी कैन गेट द बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। और इसकी डायमेंशन, इसकी बेसिस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो एस सेट जो भी स्पेस को जनरेट करेगा उसकी डायमेंशन 2 होगी। आई होप यू गेट इट। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हु आस्क्ड द क्वेश्चन? सर मैंने आस्क किया, शामिल। Shamil, हाँ। Do you have any further confusion? नो सर। Okay, great. Let's move forward then. ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, how to find the basis and dimension of a subspace. तो ये वही पिछली एग्जांपल के फॉलो अप में है कि आप कैसे फाइंड करें। Suppose V is a subspace of Rn spanned by few given vectors. To find the basis of V, do the following. ये उसका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, जो पहले हमने डिस्कस किया। जो भी आपके पास वेक्टर्स हैं उससे एक मैट्रिक्स बना लें, और जो मैट्रिक्स के जो वेक्टर्स हैं, जो वेक्टर्स गिवन हैं, मैट्रिक्स की रोज उस जो गिवन वेक्टर्स हैं उससे मैट्रिक्स की रोज बना लें। ठीक है, तो वो जो वेक्टर्स गिवन हैं वो जो स्पेस जनरेट कर रहे हैं, अब मैट्रिक्स की जो रोज हैं वही स्पेस जनरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उसको चले पीछे जाके यहाँ पे, अब मतलब ये एस यहाँ पे सेट है। अब एस सेट के जो वेक्टर्स हैं उससे आप एक बेसिकली बना दें मैट्रिक्स 1 3 -2 13। ठीक है, और -1 2 -3 12 और 2 1 1 1, ये हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। अब ये जो एस स्पेस जनरेट कर रहा है W, अब मैट्रिक्स की जो रोज हैं, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि A में रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। तो रो 1 क्या होगी आपके पास, रो 1 आपके पास ये होगा R1, ये रो 2 होगी और ये R3 होगी। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि जिस स्पेस W को ये वेक्टर्स जनरेट कर रहे थे, स्पेन कर रहे थे, अब जो रोज हैं इस मैट्रिक्स की वही स्पेस जनरेट करेंगी W। ठीक है, और उस स्पेस को हम रो स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, रो स्पेस जो है, रो स्पेस ऑफ A बेसिकली क्या होगी, W। ठीक है, रो स्पेस क्यों कहते हैं, क्योंकि रो स्पेस ऑफ A जो है वो A मैट्रिक्स की रोज से हमने जनरेट की। ठीक है, अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है जिसके हम कॉलम्स को लिखते हैं, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, इस मैट्रिक्स को अगर हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4, तो इस ए मैट्रिक्स के जो कॉलम से जो स्पेस जनरेट होगी उसको हम कॉलम स्पेस कहेंगे। तो कॉलम स्पेस जो है वो यहाँ पे W के इक्वल नहीं होगी। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स की रोज से जो स्पेस जनरेट होती है उसको हम रो स्पेस कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम से जो स्पेस जनरेट होती है उसको कॉलम स्पेस कहते हैं। ये आगे चल के हम इनको मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम
अब हमने ये देखना है कि ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स में जो हमने वेक्टर्स एज ए रोज इंसर्ट किए हैं, उससे जो रो स्पेस जनरेट हुई है उसकी बेसिस को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब बेसिस ऑफ द रो स्पेस वुड बी बेसिस ऑफ वी, तो वो जो वी स्पेस जो सब स्पेस थी Rn की, उसकी बेसिस और जो मैट्रिक्स ए की रो स्पेस है उसकी बेसिस सेम होंगी, और वहां से हम डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स की रो स्पेस की डायमेंशन या बेसिस कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस हियर इन दिस एग्जांपल। ऐसा हमारे पास कोई सेट है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं 3 2 2 6 5 -1 1 1 -1। फाइंड द बेसिस ऑफ स्पेन ऑफ S एंड डायमेंशन ऑफ स्पेन ऑफ S। S जो स्पेन करेगा वो W स्पेस होगी। फॉर एग्जांपल स्पेन ऑफ S इज W, ठीक है। अब हमने इस S के वेक्टर्स को मैट्रिक्स के रोज में लिख दिया, ठीक है। अब रो स्पेस ऑफ A जो होगी वो क्या होगी, वो भी W के इक्वल होगी, ठीक है। अगर हम रो स्पेस ऑफ A की बेसिस फाइंड कर लें तो W की भी बेसिस वही होंगी, बेसिस सेट वही होगा। अगर रो स्पेस की डायमेंशन फाइंड कर लें तो W की भी डायमेंशन वही होगी, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द बेसिस ऑफ द रो स्पेस ऑफ A, ठीक है। A इज अ मैट्रिक्स नाउ। हम क्या करेंगे, हम A को रिड्यूस करेंगे एचेलन फॉर्म में, ठीक है। In order to find the basis of the row space and the dimension of the row space, what we do here, we try to reduce the given matrix into row echelon form. Row echelon form आपको पता है कि कैसे हम obtain करते हैं। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएं, वो रो एचेलन फॉर्म में आ जाएगा। अब जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास रो एचेलन फॉर्म में आ गया है। दिस इज the echelon form of the given matrix. अब echelon form में जो नॉन जीरो रोज हैं, नॉन जीरो रोज हैं, मतलब पहली रो है इसको आप वेक्टर 1 कह दें, जो दूसरी नॉन जीरो रो है इसको आप वेक्टर 2 कह दें, ठीक है। ये दो वेक्टर्स जो हैं ये बेसिस बनाएंगे रो स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, ठीक है। किसी भी सेट के वेक्टर्स को अगर आपने प्रूफ करना है कि वो बेसिस है या नहीं, या वो जिस स्पेस को जनरेट कर रहा है उसकी बेसिस फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हैं, उस सेट के वेक्टर्स को मैट्रिक्स की रोज में लिखते हैं, उस मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, और एचेलन फॉर्म में जो आपके पास नॉन जीरो रोज हैं अगर उनको हम वेक्टर डिफाइन कर दें v1 v2, तो जो बेसिस ऑफ स्पेन ऑफ A जो होगा, बेसिकली बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ A, रो स्पेस ऑफ A ये क्या होंगी, नॉन जीरो रोज इन द एचेलन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर रो स्पेस की बेसिस यही है तो जो आपका गिवन वेक्टर स्पेस है जिसको वो एस सेट जनरेट कर रहा है उसकी बेसिस भी यही होंगी। अगर इसकी डायमेंशन 2 है तो जो आपके पास एस सेट जिस सब स्पेस को जनरेट कर रहा है उसकी डायमेंशन भी 2 होगी। दिस इज व्हाट दिस एग्जांपल बेसिकली आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। तो इसमें 3 रोज हैं तो फिर डायमेंशन 2 कैसे होंगी? बेटा तीसरी रो देखो 0 होगी ना, इसका मतलब क्या है, तीसरी रो 0 होने का मतलब क्या है, कैन यू टेल मी? सर ओरिजिन पे नो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे पास R स्क्वायर है, अगर हमारे पास एक सेट है S, ठीक है, 1 0, ये पहले भी हमने एग्जांपल ये मैंने दी थी आपको, ठीक है, 1 0 0 1 2 2, ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हैं।
ठीक है। अगर हम इसको ए सेट की फॉर्म में लिखें, ये एक स्पेस जनरेट कर रहे हैं ए सेट। ए सेट में क्या है, इन वेक्टर्स को एज ए रोज लिख देते हैं हम, ठीक है, 1 0 फिर 0 1 और फिर 2 2। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें तो क्या आएगा? Who was talking here? सर मैं बात कर रहा हूँ। शामिर? हाँ, अगर इसको वही। एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें तो क्या आएगा? एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें तो क्या आना चाहिए? शामिर? तो नीचे वाली 0 होनी चाहिए। हाँ, नीचे वाली 0 होनी चाहिए। 1 0 0 1, ठीक है, और नीचे वाली 0 होगी। अब 0 रो किसी भी एचेलॉन फॉर्म में क्या डिस्क्राइब कर रही है? क्या डिस्क्राइब कर रही है कि ये जो तीसरा वेक्टर है, इसकी तीसरी रो ये 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि जो तीसरा वेक्टर है वो पहले दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है? क्यों शामिर? सर इसका मतलब यह है कि जो तीसरा वेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है पहले दो वेक्टर्स पे। तो किसी भी मैट्रिक्स पे अगर कोई एक रो 0 आ जाती है, इसका मतलब ये होगा कि उस मैट्रिक्स की उस रो में जो वेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे वेक्टर्स पे, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है अदर वेक्टर्स पे जो कि नॉन जीरो रोज है। ठीक है, अभी हमने पहले जो एग्जांपल्स की थी पिछली स्लाइड्स पे, उसपे हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर किसी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो वेक्टर अगर हम माइनस कर दें, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया था यार, वो जो एस और टी वाली में, सब स्पेस वाली में, लेट मी गो बैक एंड सी इट अगेन, ये वाली। हाँ, अब इस सेट में 3 वेक्टर्स हैं। तीसरा वेक्टर v3 जो है वो एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 है। तो फिर हमने क्या कहा था कि हम एक और सेट t डिफाइन करते हैं जिसमें ये डिपेंडेंट वाला वेक्टर हम नहीं लिखते, ये v1 v2 है। ठीक है, ये जो t है ये सबसेट होगा किसका? s का, और s का स्पेन और t का स्पेन सेम होगा। s जो सब स्पेस जनरेट कर रहा है, t भी वही सब स्पेस जनरेट करेगा, लेकिन t किस जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? वो बेसिस होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और उस w स्पेस को स्पेन भी कर रहे होंगे। तो w की जो बेसिस होगी वो t सेट होगा, ना कि s होगा। और t सेट की के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, तो w की डायमेंशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यही लॉजिक जो है उस एग्जांपल में हम यूज कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे? अब हमने जो गिवन वेक्टर्स हैं 3 वेक्टर्स, इसमें हमने देखना है कि ये 3 वेक्टर्स जो हैं जो सब स्पेस जनरेट कर रहे हैं, सब स्पेस किसको जनरेट करेंगे? ये W को जनरेट करेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये W को जनरेट करेंगे, W इज स्पेन ऑफ S, और S में एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? R³ के एलिमेंट्स हैं, तो ये जो सब स्पेस होगी ये R³ की होगी। ठीक है, अब हमने इस सब स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है। क्या करेंगे हम? इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। इन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया? हमने उसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया। एचेलॉन फॉर्म में हमने हमें क्या बताया? इसने हमें ये बताया कि जो तीसरा वेक्टर है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है पहले दो वेक्टर्स पे, और पहले दो वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एचेलॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो जो वेक्टर्स बनाती हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो वेक्टर्स जो हैं v1 और v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो आपके पास जो एक नया सेट होगा t, या जो सेट ऑफ v1 v2 होगा, ये स्पेन करेगा इसको? w को। ठीक है, तो ये जो इसकी जो स्पेनिंग सब स्पेस बनेगी w, इसका बेसिस सेट क्या होगा? इसका बेसिस सेट v1 v2 होगा, पहला और दूसरा वेक्टर। ठीक है, पहला वेक्टर इसका क्या है? ये वाला, और दूसरा ये वाला। तो ये इसका बेसिस सेट होगा w का, और w की डायमेंशन क्या होगी? 2 होगी। I hope you get it. If you have any question, you can ask me. If you have any question, you can ask me.
जी शामिर, clear? Yes, sir. Thank you. Okay, ठीक है. Let's stop till here today. In the next lecture, we shall discuss row and column spaces. ठीक है, जो कि पहले मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है इसका. नेक्स्ट लेक्चर में हम रो एंड कॉलम स्पेसेस को डिस्कस करेंगे, एंड देन नल स्पेस एज वेल. If you have any question, you can ask me. Otherwise, we are going to stop till here today.